Hello students, the next chapter is of how do organism reproduce. How do organism reproduce? Organism reproduce through the different way, but first of all, what is reproduction? What is reproduction? Re means फिर से and production means produce करना. If we see the definition of reproduction means the process by which organism create their copies or produce new young ones. That is known as reproduction. Process by which organisms create their copies or produce new young ones. That is known as reproduction. Why reproduction is essential? ऐसी क्या आवश्यकता है कि जिससे रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है? It help in the continued the life. It help in continued the life. इसका मेन काम क्या होता है? That help in the continuation of life or maintaining of the life. If the organism not reproduce, the previous one will be die, and after that no one will be present on the earth. So it help in the continued the life or maintain the life of organism. So mainly it is required for the continuing of species. Species को continue करने के लिए, life को continue करने के लिए reproduction की आवश्यकता होती है. What is the modes of reproduction or types of reproduction? Reproduction is of two types. First one is of asexual. Asexual reproduction, a type of reproduction in which only one parents involved. Only one parents involved. A type of reproduction in which only one parents involved, that is known as asexual reproduction. In such type of reproduction, that formation and fusion of gametes not occur. Formation and fusion of gametes is not occur inside the asexual reproduction, and only one parent can produce their new young ones. That is the type of asexual reproduction. Another type of reproduction is of sexual reproduction. Sexual reproduction is the type of reproduction which involve two parents. That is involve two parents. उसमें हमेशा दो parent involve होते हैं. That is the sexual reproduction. And then the formation and fusion of gametes is there. Formation and fusion of gametes occur in the sexual reproduction. During the sexual reproduction, variation is also there. How variation is occur, we studied. But before that, how that asexual and sexual reproduction is there, how that organisms reproduce, and how their characters will be transferred to one generation to another generation or parents to offspring.
Do organism create exact copy of their? Do organism create exact copy of their? क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? नॉर्मली इफ यू सी द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ बॉडी डिजाइन. Organisms produce their similar type of body design and all the characteristics present on their chromosomes. All the characters present in the organism, that character present in the chromosome, we can say chromosome is a blueprint of an organism. Blueprint of an organism. Blueprint means that information which is present in the animals, that information present on the chromosome. That's why that is the blueprint of the chromosome. So these chromosomes carry all the information present in the animals or any organism. जो information organism में होती है, just like how the hair is there, how their color is color of the organism, or any other types of characters which is present in any organism, that character present by birth. All that characters comes from the chromosome, means that is inside the chromosome, and that chromosome create their copies. They replicate or they form their कॉपीज. जब डिवीजन होता है, जब क्रोमोसोम अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं, सपोज नॉर्मली क्रोमोसोम इज लाइक दिस, इस तरह के क्रोमोसोम होते हैं. जब भी क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं तो वो अपनी कॉपी तैयार करते हैं. इस तरह से ये पहले ये 2 कॉपी तैयार करते हैं और फिर ये अपने आप को वापिस इस तरह से डुप्लीकेट कर लेते हैं. सो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ देयर कॉपी, at the time of duplication of the chromosome, they create sometimes exact copy, sometimes the faulty DNA replication is there. कभी कभी DNA replication, यानी replication का मतलब DNA अपनी कॉपी क्रिएट करता है तो फॉल्ट आ जाता है. तो क्या होता है, पेरेंटल DNA में और डॉटर DNA में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, और उन चेंजेस या फॉल्टी कॉपिंग की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन आती है. मीन्स हमेशा वी कैन से दैट ऑलवेज दैट ऑर्गेनिज्म नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर. हमेशा कभी भी ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते हैं. कभी कभी इनमें क्या आती है, चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं. वेरिएशन क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू फॉल्टी कॉपिंग ऑफ डीएनए. किस वजह से आती है? जब डीएनए की गलत तरीके से कॉपी हो जाती है तो वो आ जाते हैं. समटाइम ड्रास्टिक चेंजेस इज देयर. बहुत बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, और बहुत बड़े चेंजेस होने पर जरूरी नहीं है कि उनकी जो न्यू यंग वंस है, ऑफस्प्रिंग है, दैट विल बी सर्वाइव. हमेशा वो सर्वाइव नहीं करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जब डीएनए कॉपी की तरह, तब डेथ हो जाती है. परंतु जब हल्के फुल्के चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वेरिएशन आती है. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर हम देखें, वेरिएशंस आर द मोर इंपॉर्टेंट. वेरिएशंस धीरे धीरे, सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें वेरिएशन आए, थोड़े अलग तरह का हो गया, देन सम वेरिएशन विल बी अकर इन नेक्स्ट स्टेप, some variation occur in next step, some variation occur in next step, some variation after the many generation. बहुत ज्यादा जनरेशन के बाद जो न्यू यंग वंस होंगे, that will be completely different from this. यहाँ पर जो आएगा इससे completely different होगा, एकदम से अलग होगा. तो this and this organ is not similar. They are formed from the similar ones. इनके ancestor एक ही है, परंतु यहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वेरिएशन आती है तो वेरिएशन क्या होती है?
एक्युमुलेट होती है, यानी एक्युमुलेट का मतलब इकट्ठी होती जाती है। यहाँ पे 2 वेरिएशन आएगी, 2 से यहाँ 2 और आई तो यहाँ 4 इकट्ठी होगी, 4 से 2 और आई, यहाँ 6 होगी, 6 से धीरे 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 वेरिएशन बढ़ती जाती है। वेरिएशन बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस आते हैं, और यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, और दैट लीड्स टू फॉर्म न्यू स्पीसीज, दैट लीड्स टू फॉर्म न्यू स्पीसीज। उसकी वजह से नई स्पीसीज बनती है, नए तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सो द वेरिएशन आर यूजफुल by the point of view to formation of new species, and that is we can say evolution. Evolution क्या होता है, that the formation of new species from pre-existing ones, जिससे नए तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, that is known as evolution. और the variation is the main basis behind the new formation of new species और evolution. तो वेरिएशन की वजह से ही हमेशा evolution होता है। सो वेरिएशन इज देयर एंड वेरिएशन अकर एट द टाइम ऑफ कॉपिंग ऑफ क्रोमोसोम, और कॉपी कब होती है क्रोमोसोम की, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में जब ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम की कॉपी क्रिएट करेगा, और कॉपी क्रिएट करते ही ये दोनों में अलग अलग कॉपी आ जाती है, और ये फिर 2 बना लेते हैं। इस तरह सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, पहले यहाँ आधा आधा हो गया, फिर ये अपने आप को वापस डुप्लीकेट कर लेता है, पेरेंट्स के जैसे होता है, जैसे हो जाता है। अब नॉर्मली दैट ऑर्गेनिज्म डिवाइड विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। ऑर्गेनिज्म 2 तरह के डिवीजन के थ्रू वो डिवाइड होते हैं। डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स, वी कैन से that is mitosis, and another type of division is of meiosis. Mitosis, it is also known as equational division. Equational division, and it is also known as reductional division. Equational division यानी पेरेंट सेल के अंदर सपोज 2n क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे, उतने ही क्रोमोसोम में 2 होंगे, यानी 46 है तो यहाँ पर डॉटर सेल में भी 46 होंगे। इन रिडक्शनल डिवीजन में इन पेरेंट सेल 2n क्रोमोसोम इज देयर, इन डॉटर सेल दैट विल बी n क्रोमोसोम इज देयर। क्रोमोसोम क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। एंड व्हेन एवर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction, such type of division और माइटोसिस इज देयर। asexual के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, माइटोसिस होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है तो क्या होता है, मियोसिस होता है। अनदर टाइप डिवीजन ऑफ मियोसिस, क्यों ये आधे हो जाते हैं, आधे होने पर वापस दूसरे गैमेट्स आता है, उस गैमेट्स में फ्यूजन होता है NN, और वापस क्या हो जाता है, रीस्टोर कंडीशन आ जाती है, यानी 2n हो जाता है। यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता तो 2n से वापस 2n, 2n से 2n। इफ यू सी इन द ह्यूमन बीइंग में दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, माइटोसिस, यानी कहीं पे बॉन्ड हीलिंग करना, बॉडी ग्रोथ है या नाक जैसे स्किन रीडेवलप होती है तो ये किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। परंतु इन जेनेटिक ऑर्गन्स, इन गोनाड्स और इन टेस्टिस एंड ओवरीज, दैट मियोसिस इज देयर, वेयर गैमेट्स इज फॉर्म्ड दैट हेल्प विद द हेल्प ऑफ meiotic division or meiosis.